Hello student, I am Faizan sir. Now I am going to start class 12th biology chapter 2nd. This is my third video lecture from this chapter. Before it, in video lecture first, we are discuss about the different type of plant which are exist on the earth and which one of the following is the flowering plant. And after it, we are discuss about the unisexual and bisexual flower and discuss about the different parts of flower. Now in the second video lecture we are discuss about the male parts of flower. It means discuss about androecium and stamen. And after it we are discuss about the microsporogenesis and microgametogenesis, and we are discuss about how the male gamete and female gamete are formed and where the pollen grain are developed inside the flower. Now in this video lecture we are discuss about the gynoecium. It means the female part of flower. As we know, the flower is the reproductive part of a plant. किसी plant का reproductive part हमारा flower ही होता है. And flower consists of different types of parts such as pedicel. It is the lowermost part which is the modified part of stem. It directly attached with the stem of plant. Now second, thalamus. Thalamus is the swell part of the flower that consists of the storage food substance to the plant. Now calyx. Calyx is the green part of the plant that provide the support, protection and hold the whole flower. Now corolla. Corolla is the colorful part of the flower that are responsible for helps in pollination. Now androecium. Androecium are known as the male part of the flower. Now gynoecium. Gynoecium are known as the female part of the flower. As we know, the new species which are developed on the earth from a living species by the help of their male part and female part of that particular organism. So both male and female part present on the flower, so we can say that the flower is the reproductive part of a plant. Now move to the next topic, gynoecium. Here the two words are written, gynoecium, carpel, pistil. The difference between them is that gynoecium is the combined term for female reproductive part of flower, while carpel and pistil used for the single number of female part of flower. तो जैसा अभी इससे पहले बोला गया, गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम एक कंबाइंड टर्म है, जबकि कार्पेल और पिस्टल क्या है? एक सिंगल फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे हमारे पास क्या है? केवल एक कार्पेल है, तो इसके हम लोग क्या यूज करेंगे? इसको हम लोग यूज करेंगे कार्पेल और पिस्टल. लेकिन अगर किसी प्लांट के अंदर, किसी फ्लावर के अंदर ये ढेर सारे होंगे, सपोज दिस इज द फ्लावर, दिस इज कैलिक्स, दिस इज करोला, नाउ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब यहाँ पे गाइनोशियम अगर ढेर सारे बन रहे हैं तो इसको हम लोग गाइनोशियम बोल सकते हैं. हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो ये गाइनोशियम बोला जाएगा. लेकिन इसको हम लोग कार्पेल या पिस्टल नहीं बोल सकते. अब इसको एक को हम लोग कार्पेल बोलेंगे, ये दूसरा भी कार्पेल, तीसरा चौथा भी कार्पेल है. तो कार्पेल या पिस्टल क्या होता है? एक को हम लोग कार्पेल पिस्टल बोलते हैं, जबकि कंबाइंड टर्म इन चारों में हम लोग क्या यूज करेंगे? गाइनोशियम वर्ड यूज करेंगे. तो दिस इज द main basic difference between the gynoecium, carpel and carpel also known as pistil. तो carpel और pistil दोनों एक ही वर्ड है, एक ही नाम है, बस खाली इसमें वर्डिंग की डिफरेंस है, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या होती है? हमारी सेम होती है. तो ये हमने एक कार्पेल का डायग्राम बना रखा है, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. This is the structure of a carpel that consists of following part. Number 1, stigma.
स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट होता है जो कि स्टिकी सब्सटेंस रखता है। स्टिकी सब्सटेंस के बेसिस का नाम रखा गया है स्टिग्मा। अब यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस होने की वजह से करते क्या है ये लोग मेल गैमेट और पॉलन ग्रेन इनके ऊपर आके अटैच हो जाता है, क्योंकि इनके पास क्या होती है स्टिकी सब्सटेंस होता है। ड्यू टू दिस स्टिकी सब्सटेंस पॉलन ग्रेन कम्स एंड अटैच ऑन द स्टिग्मा। सेकंड स्टाइल है। स्टाइल से क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जब बंद होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो स्टाइल से होते हुए वो जाती है ओवरी तक। ओवरी क्या है? ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ओवरी है। इनसाइड द ओवरी द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। नाउ इनसाइड द ओव्यूल द मेगास्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट that are responsible for process of formation of megaspore। अब मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या आएगी? मेगास्पोर आएगी। and this megaspore continuously divide and form the female gamete or egg cell। मेगास्पोर मदर सेल meiosis डिवीजन करती है। आफ्टर meiosis they form the total 4 megaspore in which only one is remain and 3 are degenerated। Now this megaspore undergo into mitosis division and after 3 mitosis division total 8 cell is formed in which one is egg cell, जिसमें से एक हमारी egg cell होती है। अब इसके बेस पे इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन थ्रू हमारे पास मेगास्पोर और एग सेल कैसे बनती है, हम लोग इसको आगे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्पल के बेस पे हमारे एनवायरनमेंट में जो फ्लावर पाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्पेल विच आर रिपोर्टेड इन केस ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में डिफरेंट टाइप के कार्पेल नोट डाउन किए गए हैं, जिनके बेस पे इनको 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोकार्पेल एंड मल्टीकार्पेल। मोनोकार्पल आल्सो नोन एज यूनिलोक्युलर ओवरी। मोनोकार्पेल इज अ कंडीशन इन विच ओनली अ सिंगल कार्पेल, वन कार्पेल और पिस्टल प्रेजेंट इन अ फ्लावर एज वी सी हियर। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक फ्लावर है। इस फ्लावर का ये कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, ये एंड्रोशियम हो गया, ये गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट हो गया। अब फीमेल पार्ट यहाँ पे क्या है? केवल एक है, सिंगल है, इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पेल ओवरी। अब इसके अलावा ये यूनिलोक्युलर क्या चीज है? यूनिलोक्युलर मीन्स इट मीन्स कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल लोक्यूली। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल कैविटी इनसाइड द ओवरी। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ओव्यूल और मोर देन वन ओव्यूल। इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास कोई मोनोकार्पेल ओवरी है तो वहां पे केवल एक ओव्यूल हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास ये ओवरी क्लियर कट विजिबल हो रही है, उसके बाद इसके अंदर ये ओव्यूल है। तो ओवरी और ओव्यूल सिंगल सिंगल है, मोनोकार्पेल हम लोग बोल देंगे। लेकिन ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि एक ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल हो सकता है, इसके अंदर कई ओव्यूल हो सकते हैं। इसके बेस पे हमारे पास यूनिलोक्युलर ओवरी को हम लोग फिर से 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग एंड बेसल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग। मार्जिनल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग के बेस हमने एग्जांपल लिया पी का। तो जैसा हम लोग देखते हैं पी प्लांट, पी फ्रूट को, इसके अंदर हम लोग को नंबर ऑफ शीट विजुअल होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में इसके मार्जिन से लगे रहते हैं। अगर हम लोग पी प्लांट, पी फ्रूट्स को लेते हैं और उसके अंदर उसको अगर उसका कवरिंग को हटा के चेक करें तो उससे हम लोग को नंबर ऑफ शीट विजिबल होता है। और शीट कैसे बनता है? शीट बनता है हमारा ओव्यूल से ही। तो ओव्यूल के बेस पे यहाँ पे एक ओव्यूल नहीं आ रहा, कई ओव्यूल आ रहे हैं, लेकिन लॉक्यूली क्या है? केवल एक सिंगल लॉक्यूल ही है। अगर इनका फ्लावर देखा जाए तो फ्लावर के अंदर ये होता है इनका फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ फ्यूल होते हैं। ये इसका मेल पार्ट हो गया, एंड्रोशियम हो गया।
अब ये क्या करते हैं, इनसे यहाँ से इसके मेल गैमेट निकलेंगे और मेल गैमेट इस फीमेल पार्ट को फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करने के बाद जितने भी इसके अंदर ओव्यूल होगी सबसे शीट उनकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोक्यूल कितनी है, केवल एक सिंगल लोक्यूल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, दे आर मोनोकार्पेल कंटेनिंग फ्लावर। नाउ बेसल प्रेजेंटेशन के बेस पे ये मोनोकार्पेल ही होते हैं भी हमारे। वीट, राइस, मेज, बार्ली, ओट। वीट में जो शीट होती है उसके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, उसके अंदर उसकी वीट ग्रेन हम लोग को क्लियर कट विजुअल होती है। तो अगर थोड़ा ध्यान देखें तो ये क्या होता है कि जो हमारी ओवरी होगी उसके बेस पे लगा होता है। यहाँ पे क्या है, ओवरी के मार्जिन पे लगा था इसलिए हमने बोल दिया मार्जिनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या इसके बेस पे लगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी फाउंड इन केस ऑफ वीट, राइस, मेज, बार्ली। मोनोकार्पेल ओवरी मोस्टली रिपोर्टेड इन केस ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी एंड फैमिली पोएसी फैमिली कंटेनिंग प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी में हमारे सारे पल्सेस आ जाती हैं जितनी हमारे पास दाल के प्लांट हैं, एंड पोएसी फैमिली हमारे पास सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, बार्ली, ओट, ये सब आता है। इसके बेस पे ये दोनों ही जो फैमिली के फ्लावर होते हैं इनके पास मोनोकार्पेल ओवरी रिपोर्ट की गई है। मोनोकार्पेल ओवरी आर द टाइप्स ऑफ ओवरी इट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल कार्पेल एंड यूनिलोक्युलर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट multicarpal ovary. Multicarpal ovary are the types of ovary that consist of number of carpel or more than one carpel. More than one carpel अगर होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, multicarpal ovary बोलेंगे। Multicarpal ovary are two types, apocarpal and syncarpal. Apocarpal ovary are the types of ovary that consist of free carpel. ऐसी ओवरी जहां पे नंबर ऑफ कार्पेल प्रेजेंट हैं लेकिन वो सभी कार्पेल क्या है, फ्री फॉर्म में अरेंज है, कोई किसी से इंटरलिंक नहीं कर रहा है, कोई के साथ बाइंड नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पेल ओवरी बोलते हैं। एपोकार्पेल ओवरी रिपोर्ट इन केस ऑफ मिशीलिया। मिशीलिया के अंदर एपोकार्पेल ओवरी पाई जाती है, ये इसका डायग्राम है। अब इसकी क्या है, एक कार्पेल है, ये कार्पेल अपने आप में क्या पूरी तरह से फ्री है, कोई किसी के साथ बाइंड नहीं कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस तरह से हो सकता है कि 50 तक हो या 25 तक हो, 30 तक हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल एक ही ओवरी के अंदर क्लियर कट विजिबल हो रहे हैं, लेकिन सारे जो हमारे ओव्यूल हैं वो फ्री हैं, कोई किसी के साथ इंटरलिंक नहीं कर रहा है, कोई साथ बाइंड नहीं कर रहा है। तो दिस कंडीशन आर नोन एज मल्टीकार्पेल एंड एपोकार्पेल ओवरी। नाउ syncarpal ovary. Syncarpal condition is the type of multicarpal ovary where the number of carpel are present but they are fused with each other. यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल होते हैं और एक दूसरे से वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अब इसके बेस पर हमारे पास बाइकार्पेल, ट्राइकार्पेल, पेंटाकार्पेल और मल्टीपल कार्पेल ओवरी हम लोग को विजिबल होती है। बाइकार्पेल, इफ अ सिंगल ओवरी कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल they are fused with each other are known as the bicarpal ovary. Bicarpal ovary reported in case of Solanaceae family and is visible in potato and brinjal. तो पोटैटो जब हम लोग काटते हैं, जब उसका ट्रांसवर्स कट करते हैं तो हम लोग को क्लियर कट कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखाई पड़ता है। पोटैटो के अंदर हम लोग को यहाँ पे इसकी ढेर सारी शेड दिखाई पड़ती है और बीच में एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस ओवरी के अंदर साइड 2 पार्ट थे, यानी यहाँ पे 2 लोक्यूल हम लोग को क्लियर कट विजिबल हो रहे थे। देयर आर 2 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ओवरी। जिसकी ओवरी होगी, इसकी ओवरी के अंदर इसका फीमेल पार्ट हो गया, अब फीमेल पार्ट के अंदर इसकी ओवरी हो गई। अब जिसकी ओवरी होगी, इसकी ओवरी 2 लोक्यूल डिवाइड कर जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल हम लोग को विजिबल होंगे। अब यही ओव्यूल क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द शीट
अब जब शीट बनाएंगे तो हम लोग को ये इस तरह से पूरा ये जो फ्लावर हमारा जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो हम लोग को इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज द बाइकार्पेल ओवरी। नाउ ट्राइकार्पेल ओवरी। इफ द 3 locules present inside the ovary are known as the tricarpal ovary। अब ट्राई में क्या होगा, 3 कार्पेल होंगे हमारे पास। तो ट्राइकार्पेल ओवरी रिपोर्टेड मोस्टली इन केस ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर यहाँ पे हमारा बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, स्पंज गार्ड ये सब आता है। इसको हम लोग कट करके देखें तो हम लोग को इस तरह से यहाँ पे 3 लोक्यूल क्लियर कट विजिबल होते हैं। वाटरमेलन हो गया, बॉटल गार्ड हो गए, बिटर गार्ड हो गए, स्पंज गार्ड हो गए, इन सब में अगर हम लोग उसको कट करते हैं तो कट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 3 लोक्यूल क्लियर कट विजिबल होते हैं। नाउ पेंटाकार्पेल ओवरी। Pentacarpal ovary are the types of ovary that consist of total 5 carpel fuses with each other। यहाँ पे 2 दिखाया गया। अगर कोई ऐसी ओवरी है जिसके अंदर ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो 5 पार्ट यहाँ पे दिखाना सिंपल नहीं है, इसको हम 5 पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते। इसको देखने के लिए उसको ट्रांसफर सेक्शन देखना होगा। इसको हम लोग ट्रांसफर सेक्शन चेक करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे टोटल 5 लोक्यूल विजिबल होते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखा होगा हिबिस्कस के अंदर, अगर हम लोग कोई हिबिस्कस का फ्लावर ले लें, उसके ओवरी को कट करें तो हम लोग को इस तरह से यहाँ पे टोटल 5 लोक्यूल क्लियर कट विजिबल होते हैं। इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा लेडी फिंगर को। लेडी फिंगर को हम जब कट करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे टोटल 5 लोक्यूल विजिबल होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक न देखा उसको आज कट करके देख लें। तो हमारे पास ये पेंटाकार्पेल ओवरी दिखाई पड़ रही है। दिस टाइप ऑफ ओवरी प्रेजेंट केस ऑफ मालवेसी फैमिली। नाउ मल्टीकार्पेल ओवरी। मल्टीकार्पेल ओवरी आर द टाइप्स ऑफ सिनकार्पेल ओवरी वेयर द नंबर ऑफ कार्पेल आर प्रेजेंट बट दे आर फ्यूजेस विथ ईच अदर। अब यहाँ पे मोर देन 9 10 11 12 इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये कितने भी नंबर में हो सकते हैं। और इसका सब क्या होता है, आपस में फ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ शो किया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी बैक साइड में भी होगा 7 8 9 10। दिस टाइप ऑफ कंडीशन रिपोर्टिंग केस ऑफ पैपेवर। तो पैपेवर के अंदर ये कंडीशन हम लोग को दिखाई पड़ती है जहां पे नंबर ऑफ कार्पेल एक साथ एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि ये हमारा, जैसे हम लोग बात करें हिबिस्कस की या कुकुरबिटेसी फैमिली की, तो उनके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के पास ओवरी केवल एक रहती है। तो बच्चों को दिमाग में ये रहता है कि ओवरी के बेस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मोनोकार्पेल और बाइकार्पेल, जबकि हम लोग ओवरी के बेस पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ओवरी के अंदर प्रेजेंट लॉक्यूल के बेस पे डिवाइड किया जा रहा है कि हमारी ओवरी जो है वो मोनोकार्पेल है या मल्टीपल कार्पेल है। यहाँ पे भी सिंगल ओवरी है, यहाँ पे भी सिंगल ओवरी है। अब इस सिंगल ओवरी के अंदर अगर केवल एक लॉक्यूल होगा, केवल सिंगल लॉक्यूल होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेल ओवरी बोलेंगे। अगर किसी ओवरी के अंदर 2 3 4 5 या उससे ज्यादा ओव्यूल, उससे ज्यादा हमारे पास ओव्यूल हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम कार्पेल, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल कार्पेल ओवरी बोलेंगे। अब मल्टीपल कार्पेल ओवरी 2 तरह की होती है, एपोकार्पेल और सिनकार्पेल। Apocarpal types of multiple carpel ovary that consist of free carpel. Now the syncarpal, it is a type of multiple carpel ovary that consist of fused carpel. Now I discuss about the megasporangium, it means the ovule. So as we know, the ovule are present inside the ovary, and these ovule after fertilization they are responsible for process of formation of sheet। ये हमारा ओव्यूल हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल कन्वर्ट टू फॉर्म शीट, while the ovary part are responsible for process formation of their pulp and covering of sheet। अब ओव्यूल के अलग अलग पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। Number 1, this is the combined structure of carpel, this is stigma,
this is style. Now the whole structure are known as ovary, and inner side structure that are represented here, they all are ovules part. Now the uppermost layer are known as chalazal end, and lowermost layer are known as the micropylon end. These are the two ends through which pollen tube enter inside the embryo sac. This is embryo sac. Now this ovule covered with two layers, outer integumentary layer, inner integumentary layer. This integumentary layer provide protection to the inner parts of the ovule, because inside it megaspore mother cell are present that are responsible for process of formation of female gamete. Now the some other part which are visible here, placenta or the basal part where the ovule start to develop. Now hilum are the area where it hold the whole flower ovules, whole part of ovule. Now funicle are the place that responsible for make the connection between the placenta and hilum. Now thalamus, it is the basal part of flower. So this is the structure of a ovule. तो किसी भी ओव्यूल के अंदर ये हम लोग को सारे स्ट्रक्चर क्लियर कट विजुअल होते हैं. इनके दो एंड होते हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड. थ्रू चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड से इनका पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट आता है, इनके ऊपर जो पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड या इंटीग्रेटेड एंड से इंटर करती है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है. अब यहाँ पे इस ओव्यूल के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की वाली सेल है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल इनके अंदर पाई जाती है. तो मेगास्पोर मदर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर हम लोग को क्लियर कट विजुअल होती है. तो पहली लेयर जो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल के ठीक ऊपर बन रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस. दिस न्यूसिलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेट. अब मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस डिवीजन करेगी, मेगास्पोर बनाएगी. अब ये मेगास्पोर फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगी और फिर एक सेल बनाएगी. तो लगातार डिवीजन होता है और एक सेल बनता है, एक सेल के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है. तो ये सारी प्रोसेस जो चल रही है इनको हाई एनर्जी की नीड होती है. एंड दिस एनर्जी आर प्रोवाइड बाय द न्यूक्लियस लेयर. न्यूक्लियस लेयर के अंदर जो सेल होती है वो हाईली एनर्जेटिक होती है और वो डेवलपिंग एक सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है. इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. न्यूक्लियस के ठीक ऊपर हम लोग को दो लेयर अदर लेयर दिख रही है. दिस इज नोन एज द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट. These are the integumentary layer that are responsible to make covering the whole ovule. ये पूरे ओव्यूल को कवर करने का काम करती है. आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट बाद में शीट कोट बनाती है. शीट के ऊपर दो कोट हम लोग को दिखती है, टेस्टा और टैगम. आउटर इंटीग्यूमेंट से हमारा टेस्टा आता है, जबकि इनर इंटीग्यूमेंट से हमारा टैगम लेयर आता है. तो टेस्टा और टैगम लेयर जो फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती है? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट से फॉर्म होती है. This ovule start to develop from an area and from place of the base of thalamus. This place are known as the placenta. तो प्लेसेंटा वो एरिया है जहां से ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और ये ओव्यूल थैलेमस से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है. नाउ हाइलम आर द प्लेस दैट होल्ड द होल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. हाइलम वो एरिया है जो कि ओव्यूल के सारे स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम करता है. नाउ फ्यूनिकल इसके अंदर प्रेजेंट एक ऐसा एरिया है जो कि हाइलम और प्लेसेंटा के बीच कनेक्शन बनाने का काम करता है. तो हाइलम प्लेसेंटा को कौन जोड़ रहा है? हमारा फ्यूनिकल जोड़ रहा है. ओके, सो वी आर डिस्कस अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस. Process of formation of megaspore from megaspore mother cell are known as megasporogenesis.
Megasporogenesis is a process in which a single megaspore mother cell undergo into meiosis division, and after it they form the megaspore, where megaspore mother cell present in diploid form while the megaspore present in haploid form. तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है. आफ्टर मियोसिस डिवीजन दे फॉर्म द टोटल 4 मेगास्पोर, वेयर द मेगास्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट इन डिप्लॉइड फॉर्म व्हाइल द मेगास्पोर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फॉर्म. तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है और इसके अंदर डिवीजन कैसे हो रहा होता है इसको देखते हैं. तो जैसा हम लोगों ने बात किया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल. नाउ ओव्यूल आर कवर्ड विद न्यूक्लियस लेयर. अपर पार्ट आर नोन एज द चिलाजल एंड, लोअर पार्ट नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड. सो दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. अब माइक्रोपाइलर एंड के सामने जो हम लोग को दिखा फर्स्ट लेयर, नंबर ऑफ सेल दिखाई पड़ रही है, उसमें कौन सी हमारी न्यूक्लियस लेयर है. दिस न्यूक्लियस लेयर आर कवर्ड द मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ पे हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल मेरे को क्लियर कट विजुअल हो रही है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया. नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो इनटू meiosis division. Meiosis division is a type of directional division in which one cell divide to give total 4 cells, and this process completes in total 2 steps. First step known as meiosis first, second step known as the meiosis second. Firstly, one cell divide to give 2 cell. Now this 2 cell again divide and convert to 2 cell. Now this 1 cell produce total 4 cell. So this activity is based on the megasporogenesis. यहाँ पे क्या हो रहा है? meiosis first हमारा हो रहा है. After meiosis first, 1 megaspore mother cell divide to produce total 2 megaspore. यहाँ पे हमारे पास 2 मेगास्पोर आ गए. Now this megaspore again undergo meiosis second division. Because meiosis complete in 2 steps, so it undergo to second division. Now this megaspore again divide and produce total 4 megaspore. In this way, 1 megaspore mother cell undergo meiosis division and form the total 4 megaspore. ऐसा ही हमारा काम मेल गैमेट के अंदर भी हो रहा था. वहां पे क्या था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल meiosis डिवीजन कर रही थी और टोटल 4 माइक्रोस्पोर बना रही थी. बट here is a main difference is that in case of megasporogenesis, upper 3 layer are degenerated, only 1 are remain. This is known as the monosporic development. अब इसमें होता ये है कि जो हमारे ऊपर की 3 लेयर डिजेनरेट कर रही है वो सेल से इसके अंदर गायब नहीं होती. वो कहाँ होगी? एम्ब्रियो साइक के अंदर ही पड़ी रहेगी. But they are converted in the form of liquid structure, and this liquid structure helpful and provide nourishment to the developing megaspore. अब ये मेगास्पोर हमारी बन रही है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में ये जो हमारी डिजेनरेटेड मेगास्पोर है वो हेल्प करती हैं. Now I am going to discuss about the megagametogenesis. Megagametogenesis is a process in which the megaspore undergo into mitosis division and form the number of female gamete. This process known as megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि इसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस डिवीजन करती है और आफ्टर माइटोसिस डिवीजन, आफ्टर 3 माइटोसिस डिवीजन दे फॉर्म टोटल 8 सेल कंटेनिंग एम्ब्रियो सैक इन विच 1 सेल कन्वर्ट टू फॉर्म अ फीमेल गैमेट. अभी कैसे होता है इसको देख लेते हैं. यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल है. अब क्या बोला जा रहा है कि ये लोग माइटोसिस डिवीजन करते हैं. इससे पहले क्या था? मियोसिस डिवीजन था. यहाँ पे मियोसिस बोल रहा है यानी कि क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं. इट मींस दैट मेगास्पोर मदर सेल हमारी बन रही होगी, मेगास्पोर हमारा एंड रहा होगा. अब जब मेगास्पोरोजेनेसिस
स्टार्ट होती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, सो दिस मेगा स्पोर अंडरगो इनटू माइटोसिस डिवीजन. So one cell divide to give two cell. These two cell reach towards the opposite pole of embryo sac. ये embryo sac के अंदर opposite pole पे पहुंच जाते हैं. Now this cell again undergo into mitosis division. This is mitosis first. This is mitosis second. Now this cell again divide to give total 4 cell. One cell give 2 cell, other one cell give 2 cell. Now this cell again undergo into mitosis division, and after mitosis these all cell divide and produce total 8 cell structure containing embryo sac. Now this embryo sac undergo into cell differentiation process. यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल 8 सेल बनी हुई है वो सेल चली जाती है सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में. यहाँ तक क्या था, सेल डिवीजन हो रहा था, अब क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ड्यू टू दिस द 3 सेल रीच टू द माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. अपर पार्ट आर नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड. लोअर पार्ट में द चलाजा लिंग. ये अभी तक हमारा सेम ही चल रहा है. ये माइक्रोपाइलर चला जा, 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 माइक्रोपाइलर चला जा. तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा लिंग. अब माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल पहुंच गई, उसमें से 1 सेल कन्वर्ट होकर क्या बना ली हमारे पास, फीमेल गैमेट बना ली, इसको हम बोलते हैं एक्स सेल. एक्स सेल मींस फीमेल गैमेट. ये हमारे पास फीमेल गैमेट आ गया. Now there are 2 synaptic cell, so 3 cell present at the micropolar end. Now 2 cell present at the center that are known as the polar nuclei या polar cells. These polar cells are 2 in number. Now 3 cell reach to the chalaza end, and this cell are known as the antipodal cells. This is the structure of immature embryo sac. Now this is the structure of mature embryo sac. तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है. मेगा गैमेटोजेनेसिस is the process in which one mega spore undergo into mitosis division, and after 3 mitosis division they produce total 8 cell structure, in which 1 cell are modified to produce X cell, other 2 cell modified to produce synaptic cell, 2 cell modified to produce polar cells, and 3 cell modified to produce antipodal cell. This phenomena is known as the mega gametogenesis. So now we are discuss about the development of embryo sac. ये हमने जो पूरा डिस्कस किया है phenomena, this total phenomena are considered as developmental stage of embryo sac. ये हमारी embryo sac है. embryo sac में होता क्या है, इनिशियल कंडीशन में एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है. ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है. मियोसिस डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट जाती है हैप्लॉयड सेल में और टोटल 4 मेगा स्पोर फॉर्म करती है. अब इस 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, उनकी साइज छोटी होती है, वो डिजेनरेट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ओनली 1 मेगा स्पोर आर रिमेन. दिस फिनोमेना इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बेस पे यहाँ पे 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट कर जा रहे हैं, केवल 1 मेगा स्पोर बन रहा है. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. अब ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई यहाँ तक. इसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, ये हमारी जो मेगा स्पोर होती है, दिस मेगा स्पोर अंडरगो इनटू माइटोसिस डिवीजन. आफ्टर 1 माइटोटिक डिवीजन दिस मेगा स्पोर फॉर्म द 2 सेल स्ट्रक्चर. नाउ दिस 2 मेगा स्पोर
again go to mitotic division and form the 4 cell structure. Now this 4 cell structure again undergo into mitosis process. Now these all cell form the total 8 cell structure. अब यहाँ पे हम लोग को सभी सेल जितनी सेल यहाँ पे है सब के सब 2-2 सेल बनाएगी, तो हमारे पास टोटल 8 सेल स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यहाँ पे एक सेल जो कन्वर्ट होती बनाती है एक सेल को, सेकेंड सिनर्जिड सेल बनाती है, उसके बाद 2 पोलर सेल बनती है और 3 एंटीपोडल सेल बनती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक द मेन डिफरेंस इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 सेल एंड 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग को टोटल 7 सेल दिखती है और 8 न्यूक्लियस विजिबल होते हैं। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब हमने क्या किया, इसका चलाजा एंड लिख दिया, इसका माइक्रोपाइलर एंड लिख दिया। ये हमारे पास चलाजा एंड पे क्या आ रहा था, हमारा चलाजा एंड पे बना आ रहा था एंटीपोडल सेल आ रही थी, तो ये हमारी 1 2 3 ये एंटीपोडल सेल हो गई। इन सब में एक एक न्यूक्लियस है। सेकेंड जो हमारी है वो हमारी सेंट्रल सेल है। ये सेंट्रल सेल के अंदर क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, तो सेल ये एक है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। नाउ थर्ड एक सेल नोन एज द फीमेल गैमेट, जो कि दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज करते हैं और जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कवर द एग सेल। ये एक सेल को कवर करके रखती हैं, क्योंकि एक सेल ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, जिसके बाद इनकी नई जनरेशन आगे आने वाली है, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनकी सेफ्टी नेसेसरी है। इसलिए क्या होता है कि इसके चारों तरफ सिनर्जिड सेल की कवरिंग होती है। नाउ दिस सिनर्जिड सेल कंसिस्ट ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus. From this filiform apparatus, male gamete pollen tube enter into the embryo sac. इस embryo sac के अंदर वो लोग एंटर करते हैं। अब इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारी 7 सेल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 1 सेंट्रल सेल हो गई जिसके अंदर 2 पोलर सेल है, तो सेल हम लोग खाली काउंट कर रहे हैं, और फिर हमारे पास 2 सिनर्जिड सेल है और 1 एग सेल है। अब इसको हम लोग काउंट करें तो 2 और 1 3, फिर 1 4 एंड 3 7 सेल हो गया। अगर हम इसका न्यूक्लियस काउंट करें तो न्यूक्लियस के बेस पे हमारे पास दिस इज 2 synergid cell nucleus, this is egg cell nucleus, these are 2 polar nuclei of central cell, and these are 3 antipodal cell nucleus. Now count the nucleus: 1 2 3 4 5 6 7 8. It means that this is the structure of mature embryo sac. So this overall process are considered as the developmental stage of embryo sac. Developmental stage of embryo sac. यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन बहुत होता है, क्वेश्चन कुछ और आता है वो आंसर कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास समझने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। पहला मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर मदद से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। दूसरा लोगों ने यहाँ पे देखा था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास 3 मेगा स्पोर डिजेनेरेट करके केवल 1 मेगा स्पोर बच रही थी, वो हमारे क्या था, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये थर्ड पॉइंट था। मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि मेगा स्पोर माइटोसिस डिवीजन करता है और 8 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। फोर्थ, ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, जो मोस्टली हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। और दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है टू डिफाइन द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करनी होंगी, तब ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा।